A very good morning to my class 12 students. I hope you all are fit and fine at home and making the best possible use of this time. So, students, as we were doing the revision of our chapter, admission of partner, in that chapter, only one topic has been left, that is adjustment of capital. We will study this part of the chapter in very detailed manner and will also solve 3 to 4 questions of this concept. So first of all, let's understand that is what is the meaning of adjustment of capital. So let's take an example. For example, there are two partners A and B sharing profits in the ratio 3:2. They admit C as a partner with 1 by 4th share and capital 10 lakh and goodwill he is bringing is 2 lakh. 10 lakh capital and 2 lakh is the goodwill. First of all, we will have to calculate the new firm capital. How will we calculate this? We will take capital of the new partner and multiply with the reciprocal of its share. So the reciprocal of 1/4 share will be 4, 4 by 1, right? And 1 it down has no value. So 10 lakh multiplied by 4 comes out 40 lakh, right? Now new firm capital means 10 lakh includes C's capital and rest of the 30 lakh includes A and B's capital, right? So we will calculate the new ratio. When there is a simple case, you know that old ratio is equals to sacrificing ratio. You can calculate the new ratio. According to new ratio, the ratio which is that is 30 lakhs, which is to be divided among A and B, will be in the ratio 3 by 5 and 2 by 5 respectively, right? So this becomes 18 lakh and 12 lakh and 10 lakh is with C's new capital. तो A, B और C का जब कलेक्टिव देखा तो दैट कम्स आउट 40 लाख. इतना पता चला न्यू कैपिटल की डिस्ट्रीब्यूशन. उसके बाद लेट्स सपोज हमें गिवन है कि 20 लाख एक्चुअल कैपिटल है ए की और 10 लाख है एक्चुअल कैपिटल बी की. नाउ वी विल कंपेयर कि न्यू कैपिटल होनी चाहिए 18 लाख होनी चाहिए और है हमारे पास 20 लाख. दैट मीन्स हमारे पास 2 लाख ज़्यादा है. तो वो जो 2 लाख ज़्यादा है वो हम क्या करवा देंगे, विड्रॉ. मतलब ए जो पार्टनर है वो एक्स्ट्रा एक्सेस 2 लाख जो है उसको विड्रॉ करवा लेगा. गट इट. देन आफ्टर दिस न्यू कैपिटल ऑफ बी इज 12 lakh but actual capital is 10 lakh. New capital should be 12 lakh na. Actual capital is 10 lakh. That means B will introduce more capital. So the entry will be bank account debited to B's capital account and withdrawing of capital, journal entry, A's capital account debited to bank account. So this was the simplest example I gave you, okay, to understand the concept of adjustment of capital. Now we will discuss the methods, like cases of adjustment of capital. There are two cases. We'll discuss these two cases step by step. So first case, here new partner's capital is given. You are given with the new partner's capital, right? So what you have to do first, at first you have to calculate the new firm capital. How will you calculate new firm capital? That is multiplying new partner capital with the reciprocal of his share. You will calculate it, then distributed in new ratio. अब देखो जो पूरा न्यू पार्टनर की जो है ना पूरे फर्म की कैपिटल आ गई न्यू फर्म की, उसमें से आपने न्यू पार्टनर का कैपिटल निकाल के, जैसे इसमें किया था 40 लाख आई थी, 10 लाख निकाल दिया. जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट है वो आपने जो है अपने ओल्ड पार्टनर्स को न्यू रेशियो में जो है वो बांट देना है. ठीक है, समझ लग गया. इसके बाद अगर कोई भी बैलेंस बच जाता है तो वो अपने कैश या करंट अकाउंट से जो है उसको एडजस्ट कर देना है और ये आपको केस बताएगा. जैसे जैसे आपको केस बताएगा वैसे वैसे आपने एडजस्ट करना है. एग्जाम्पल, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया. सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपने जो ये न्यू कैपिटल निकाली थी ना, इधर यहाँ पे न्यू कैपिटल ये आपने बाय बैलेंस सीडी में डाल देनी है. ठीक है, सिंपल आपने एडजस्टमेंट्स करनी है. उसके बाद अगर इधर बैलेंस बच जाएगा तो टू कैश, अगर इधर बैलेंस बच जाएगा तो बाय कैश. इफ इट इज मेंशनड in the question that the adjustment is to be made by the current account, then you will not add the cash account, you will add current account, to current account, by current account.
I hope this is clear to everyone. So if 2 cash is written on the debit side, like 2 cash is given, partner's capital account is debited 2 cash, that means cash has been withdrawn. ठीक है, capital has been withdrawn, तभी तो cash गया है. Or in this case by cash, and partner's capital account is being credited and cash is being debited, that means new capital is being brought to the organization, right? Now we will solve one question from this case. This is the simple question. This question can come in like 3 marks, or there is a major possibility that it will come in 1 mark or MCQ. See, Rohit and Rohan are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2. Okay, the remaining capitals of Rohit and Rohan after adjustment are 40,000 and 30,000 respectively. They admit Ravi as a partner on his contribution of 17,500 as capital for 1/5 share of profits to be acquired. So in this case, like in this question, first case being followed because you are given with the new partner's capital. ठीक है, acquired equally from both Rohit and Rohan. The capital account of the old partners are to be adjusted on the basis of the proportions of Ravi's capital to his share in the business. Calculate the amount of actual cash to be paid off or brought in by the old partners for the purpose. Okay, so here I have written, ठीक है, कि 2 partners है Rohit and Rohan, और Ravi being the new partner is brought into the partnership for 1/5 share, which he acquired equally from Rohit and Rohan. So when I do 1/2 of, so it comes out Rohit से लिया 1/10 and Rohan से भी लिया, that is 1/10, right? तो अब हम आराम से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लेंगे, that is old minus new. This is old minus new. ठीक है, ये निकल जाएगी. रोहन की भी old minus new रेशियो निकल, राइट? देन रवि की तो वी ऑलरेडी न्यू कि 1/5, तो टू मेक द डिनोमिनेटर सेम वी हैव मल्टीप्लाइड बोथ साइड्स बाय 2, सॉरी अपर एंड लोअर पोर्शन बाय 2. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज अवर टू कैलकुलेट द न्यू फर्म कैपिटल. तो न्यू फर्म कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं? दैट इज न्यू पार्टनर की कैपिटल मल्टीप्लाई बाय his share, that is the reciprocal of his share. ठीक है, his share was 1/5, we did reciprocal, that is 5/1. so this is the new firm capital. ठीक है, अब ये जो न्यू फर्म कैपिटल आई है इसको आप डिवाइड करोगे न्यू रेशियो में, दैट इज 5/10, 3/10 पार्टनर वाइज. ठीक है, तो ये जो आई न्यू कैपिटल रोहित की थी 43,750, रोहन की दैट वाज 26,250 एंड रवि की इट वाज 17,600. ठीक है, एक्चुअल कैपिटल्स आर ऑलरेडी गिवन. रवि की तो देखो जनरल एंट्री सिंपल रहेगी, रवि ने कैपिटल लेके आया रवि, तो दैट मीन्स बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रविस कैपिटल अकाउंट. अब इनका हम देखते हैं, ये हमें गिवन है एक्चुअल कैपिटल एंड 30,000, 40,000 एंड 30,000 रोहित एंड रोहन की. ठीक है, न्यू कैपिटल हमने निकाल ली और डिस्ट्रीब्यूट भी कर दी. ठीक है, पार्टनर वाइज. तो अब देखो न्यू कैपिटल ज़्यादा है एक्चुअल कैपिटल से. ठीक है, तो एक्चुअली में होनी चाहिए 40,000, बट न्यू कैपिटल होनी चाहिए, सॉरी आप इसको ना कंपैरिजन ध्यान से देखना एक सेकेंड, कि न्यू कैपिटल है 43,750. ठीक है, इतनी होनी चाहिए. न्यू कैपिटल मीन्स होनी चाहिए. ये थोड़ा एक्चुअल से कंफ्यूजिंग हो जाता है कि एक्चुअली इतनी होनी चाहिए, बट नहीं, न्यू कैपिटल मीन्स इतनी होनी चाहिए और एक्चुअल इतनी है. ठीक है, इतनी है. तो अब देखो न्यू कैपिटल होनी चाहिए 43,750 और हमारे रोहित के पास है 40,000, दैट मीन्स वो बाकी जो बैलेंस है 3750 का वो और लेके आएगा. ठीक है, आई थिंक अभी आपको इतना समझ लग गया. ठीक है, सेकेंड रोहन का केस है कि न्यू कैपिटल होनी चाहिए 26,250, बट उसके पास कैपिटल है 30,000 की, दैट मीन्स इतना बैलेंस ज़्यादा है, तो वो जो है एक्सेस बैलेंस जो है वो विड्रॉ करवा लेगा. जनरल एंट्री आपको पता है
कैपिटल लाने की बैंक अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और विड्रॉ करवाने की पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट. सो दिस वाज योर सोल्यूशन. आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ लगा है. So let's move to second question. This is the full-fledged question involving a revaluation account, partners capital account. So let's read the question first. Om, Ram and Shanti were partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2:1 on 1st April 2024. Balance sheet is given. We'll read the adjustments. ठीक है. On the above date, Hanuman was admitted on the following terms. He will bring 1 lakh for his capital and will get 1/10th share in the profits. He will bring necessary cash for his share of goodwill premium. The goodwill of the firm is valued at 3 lakh. Okay. The liability of 18,000 will be created against bills receivable discounted. The value of stock and furniture will be reduced by 20%. So this will go into the revaluation account. The value of land and building will be increased by 10%. This will also go on the credit side of the revaluation account. And at the last point, it is always mentioned that you have to do the adjustment of capital. It is always mentioned. It will always be mentioned in the question. Otherwise, you will be solving the question normally. Okay? Capital accounts of the partners will be adjusted on the basis of Hanuman's capital in their profit sharing ratio by opening current accounts. Prepare revaluation and partners capital account respectively. So हनुमान का शेयर भी गिवन है, हनुमान की कैपिटल भी गिवन है. सो वी विल कैलकुलेट न्यू पार्टनर्स, न्यू फर्म्स कैपिटल, न्यू फर्म्स टोटल कैपिटल. ठीक है. जब एक बार न्यू फर्म की टोटल कैपिटल आ गई तो वो हम जो है पार्टनर्स की न्यू रेशियो में जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. देन उसको जो है एक्चुअल कैपिटल के साथ कंपेयर करेंगे. ठीक है. तो आई विल शो यू हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक वर्किंग नोट्स है. ठीक है. आपको ऐसे ज़रूर अपनी क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको ये ज़रूर इधर मेंशन करना है. इट डजेंट मैटर यू डू वर्किंग नोट्स ऑन बिफोर द क्वेश्चन और आफ्टर द क्वेश्चन. इट डजेंट मैटर. Working notes should be clear. Your solution should be clear. This is what matters, right? So Om, Ram, Shanti are partners sharing profits in the ratio 3:2:1. Hanuman is invited, admitted. 1 lakh का 10 किया तो that is 10 lakh. ठीक है. उसका रेसिप्रोकल कर दिया शेयर का. तो ये न्यू फर्म की कैपिटल आ गई. तो न्यू फर्म की कैपिटल को जिसमें से जो हनुमान का शेयर है, हनुमान का शेयर है 1 लाख. ठीक है. हनुमान का शेयर 1 लाख है. तो 10 लाख में से 1 लाख गया. तो अब ये जो 9 लाख है ना, ये इन तीनों में डिवाइड होना है. ठीक है. अगर आप न्यू रेशियो भी कैलकुलेट कर सकते हो, बट अगेन मैं आपको एक हैक बताने लगी हूँ सिंपल केस में. जैसे मैंने आपको कल की वीडियो में एक सिंपल केस का हैक बताया था, वैसे ही इसका भी बताने लगी हूँ. जब सिंपल केस होगा ना, तब आप मत निकालना न्यू प्रॉफिट रेशियो. आप ना जितनी टोटल फर्म की कैपिटल होगी उसमें से न्यू पार्टनर की कैपिटल को माइनस कर देना. 10 लाख में से 1 लाख माइनस कर दिया. अब जो 9 लाख है ना, उसको इस रेशियो में डिवाइड कर देना. ठीक है. 3:1 मतलब 3/6 इसको, 2/6 इसको एंड 1/6 इसको. ठीक है. तो इसको जब हमने किया तो ये आया 4,50,000, 3 लाख एंड 1,50,000. सो जो ये न्यू कैपिटल आई है ना, ये आप डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर दोगे पार्टनर्स के कैपिटल के टू बैलेंस कैरी डाउन में. सीधा सीधा ये जो है ट्रांसफ़र होगी अमाउंट. ठीक है. फिर जो जहाँ पे भी बैलेंस बचेगा उसको हम एडजस्ट कर देंगे. राइट. तो रिवैल्यूएशन में उन्होंने बोला था कि बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड जो है एक लाइबिलिटी है. तो ये 18,000 है, क्योंकि हमने अगर बैंक से डिस्काउंट करवा लिया हुआ बिल तो दैट इज़ अवर लाइबिलिटी. कि अगर वो डिसऑनर हो गया है, राइट, इन केस वो ना पे किया गया, तो वो एक लाइबिलिटी बन जाती है. स्टॉक जो है कम हुआ 20% से, फर्नीचर भी कम हुआ. आपको बताया था एसेट कम होगा तो ये हमारा कहाँ पे जाएगा, डेबिट साइड पे. दिस इज़ द डेबिट साइड. और मेरे को एक और चीज़ बतानी थी कि द अनदर नेम फॉर रिवैल्यूएशन अकाउंट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. ठीक है स्टूडेंट्स. इसके बाद जो है, जो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज़ होगी वो क्रेडिट साइड पे जितने से होगी, देन जो रिवैल्यूएशन लॉस आया वो 50,400 का लॉस आ गया. अब ये जो लॉस आया इसको हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कर देंगे ट्रांसफ़र. ठीक है. तो ये जो लॉस है, आपको पता है गेन जो है ट्रांसफ़र होता है ऑन द क्रेडिट साइड. बट स्टूडेंट्स, अगर गेन क्रेडिट साइड पे जो है ट्रांसफ़र होगा, दैट मीन्स जो लॉस है वो हमारा डेबिट साइड पे ट्रांसफ़र होगा. सो दिस इज़ डेबिटेड. राइट. आफ्टर दैट
opening balances were given of 3 of the old partners, and by bank account we made entry of 1 lakh to new partner was Hanuman. ठीक है, उसके बाद जो उसकी goodwill है, you know this thing that good premium of for goodwill is distributed among old partners in which ratio? That is sacrificing ratio. Got it? Clear to everyone? Goodwill is always distributed in the sacrificing ratio. Okay, and the entry is premium for goodwill account debited to old partners capital account, right? Then the general reserve again distributable items आ गई, तो general reserve will be credited to partners capital account. So this is, and in what ratio? Old ratio. ठीक है, तो this is credited. The balance, अब देखो ओम का बैलेंस बच रहा है क्रेडिट साइड पे, तो बाय ओम्स करंट अकाउंट इट इज मेंशन इन द क्वेश्चन दैट यू हैव टू मेक द एडजस्टमेंट्स बाय करंट अकाउंट, लाइक बैलेंस आपको जो करंट अकाउंट से शो करना है. इफ इट इज नॉट मेंशनड देन यू हैव टू राइट बैंक अकाउंट. ठीक है, बाय बैंक एंड टू बैंक. यू मे राइट कैश और बैंक एज वेल. ठीक है, इसके बाद टू शांति's करंट अकाउंट 116,600. आफ्टर दैट राम्स करंट अकाउंट 9200, क्योंकि इनका क्रेडिट साइड ज़्यादा था तो इनका बैलेंस डेबिट पे बच रहा था. ओनली ओम का डेबिट ज़्यादा था और उसका बैलेंस जो था वो क्रेडिट साइड पे बच रहा था. सो स्टूडेंट्स, वी हैव सीन, वी हैव इवन अंडरस्टूड द केस 1. ठीक है, केस 1 ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वेयर new partners capital is given. And we have also solved 2 question. This question is of 6 marks weightage. इस ऐसे क्वेश्चन की 6 मार्क्स की वेटेज होती है, और जो हमने पहले क्वेश्चन किया था मोस्ट प्रोबेबली वैसे तो ये 1 मार्क क्वेश्चन में कवर होता है, इतना लेंदी नहीं होगा ऑल्दो, बट ये एमसीक्यूज में ये चीज़ें से कवर हो जाती. द थिंग शुड बी कि कॉन्सेप्ट आना चाहिए, तो क्वेश्चन जहाँ से मर्जी आ जाए, इफ़ यू नो द कॉन्सेप्ट यू विल बी एबल टू सॉल्व इट. सो ओके, so let's proceed to the second case of adjustment of capital, and by learning this case, doing 2 questions of this case, this chapter's revision is completed. So we will start retirement chapter revision on next class. So new partner's capital is not given, or something like this will be written in the question. न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ कैपिटल, प्रपोर्शनेट कैपिटल, बताया नहीं कितनी कैपिटल, इट इज जस्ट मैंशनड ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ कैपिटल और प्रपोर्शनेट कैपिटल. ओके, न्यू पार्टनर ब्रिंग 1/4 कैपिटल इन न्यू फर्म, उसका शेयर बता दिया बट कैपिटल मैंशन नहीं है. ठीक है, न्यू पार्टनर ब्रिंग 20% और 30% ऑफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी. ठीक है, कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी. ओके, तो सबसे पहले आपने न्यू पार्टनर की जो है कैपिटल फाइंड करनी है. सबसे पहले, उससे भी पहले आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा? टोटल फर्म की कैपिटल. तो आप वो कैसे फाइंड आउट करोगे? आपने क्या करना है, क्लोजिंग बैलेंसेस लेने हैं ओल्ड पार्टनर्स के आपने लेने हैं क्लोजिंग बैलेंसेस. उसको मल्टीप्लाई करना है 1 से और डिवाइड करना है 1 माइनस जो न्यू पार्टनर का शेयर होगा. बेसिकली 1 माइनस न्यू पार्टनर का शेयर का रेसिप्रोकल कर देना. ठीक है, ये जो हम क्लोजिंग बैलेंसेस ले रहे हैं ना ओल्ड पार्टनर्स के, तो उनके शेयर को ही रेसिप्रोकल करना है. समझ रहे हो? इनके ही शेयर को रेसिप्रोकल करना है, क्योंकि जब एक में से पूरे फर्म के शेयर में से आप न्यू पार्टनर के शेयर को माइनस कर रहे हो, तो जो बच रहा है वो तो ओल्ड पार्टनर्स का ही है ना शेयर, तो उसको रेसिप्रोकल कर देना. देन उसकी हेल्प से जब आपके पास न्यू फर्म की कैपिटल आ जाएगी, अब मल्टीप्लाई बाय पार्टनर्स, दैट इज मल्टीप्लाई इट बाय न्यू पार्टनर्स की कैपिटल निकालने के लिए फिर रेसिप्रोकल कर दोगे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था. तो इसकी भी हम एक एग्जांपल देखते हैं. क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन है ए एंड बी के इन न्यू फॉर्म. ए का है 90,000, बी का है 60,000. सी ब्रिंग्स 1/3 शेयर इन न्यू फॉर्म, ब्रिंग्स प्रोपोर्शनेट कैपिटल और 1/3 कैपिटल इन न्यू फॉर्म. ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों को हमने ऐड किया 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 1 माइनस कितना शेयर है उसका 1/3. तो बच्चे ये आ गया आपका 2/3. तो 2/3 को फिर मैंने रेसिप्रोकल कर दिया, बिकॉज ऊपर 1 है ना, तो मैंने रेसिप्रोकल कर दिया 3/2. ठीक है, तो ये इतने से आ जाएगा
फर्म की जो है शेयर, ठीक है। फिर उसके बाद जो है न्यू पार्टनर की भी जो है हम निकाल लेंगे कैपिटल, इतने से आ गई न्यू फर्म की कैपिटल। और इसके बाद मल्टीप्लाई करके, रेसिप्रोकल करके पार्टनर के शेयर को मल्टीप्लाई करने के बाद जो है आ जाएगा 75,000, ये आ जाएगा न्यू पार्टनर्स कैपिटल। और एक बार अगर आपके पास न्यू पार्टनर्स कैपिटल आ जाए तो आप जो है इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। C brings 20% of combined of A and B in new firm. C brings 20% of capital in new firm. तो ये क्वेश्चन की लैंग्वेजेस गिवन हो सकती है। So let's solve one more question of this. X and Y sharing profits and losses in the ratio of 3:2. The capital of X and Y after adjustments are 80,000 and 60,000 respectively. They admit Z as a partner who is the contribute proportionate capital and acquire a 1/5 share of total capital of the new firm equally from both the partners X and Y. Calculate capital to be bought in by 2. Also pass journal entries. Okay. तो इन्फॉर्मेशन लिख लेंगे दैट इज एक्स एंड वाई आर टू पार्टनर्स आफ्टर एडजस्टमेंट शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2 आफ्टर एडजस्टमेंट द कैपिटल्स आर 80,000 and 60,000. Z is being admitted for 1/5 share which he is taking equally, मतलब 1/10 from X and 1/10 from Y. ठीक है, तो न्यू फर्म की कैपिटल निकाल लेंगे, दोनों पार्टनर्स के कैपिटल को ऐड किया, मल्टीप्लाई बाय 1 एंड -1 - 1/5। आई होप ये चीज़ अब आपको समझ लग गई, ठीक है। तो ये हमने किया 5/4 आया, और फिर हमने इसके ही शेयर के साथ 1/5 के साथ इसी के शेयर के साथ मल्टीप्लाई करके न्यू पार्टनर की कैपिटल निकाल ली। तो जनरल एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। So in today's class we have solved 4 questions, 2 question from each case. Your homework is to solve only 2 questions. Practical questions that are question number 67 and 87. So this is your homework. So this was all about today's class, and also with this homework, the questions which I have discussed in today's class, you have to repeat these questions again. You can see, you can take screenshots like I'm holding. You can even prepare these notes as well. These kind of notes are very helpful when we are doing last minute revision. These kinds of notes are very helpful. So thank you class, this was all about today's class. Thank you so much.